मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. These are the words of Army Chief, serious leader of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the House what the Army Chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ. आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ. पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं. आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे. हाँ, But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. that's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. Okay? One second, let me speak. making a very big allegation the Prime Minister. No. I'm not. Let me speak. But the book is not even published, Mr. Gandhi. Let me speak. You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes, not at all. We are yes. not talking to the That's your government. agenda. No, Now not listen at to all. me. You asked me a question. Let me answer the question. Okay? This is not me. This is the Army Chief. This is what the Army Chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the Army Chief's perspective, his view. Why are they so scared of the Army Chief's perspective? Why are they so scared of what the Army Chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवाने जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है. मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ. नारावाने जी ने ये किताब लिखी है. वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में पूरा. थैंक यू. राहुल गांधी को सुन रहे थे आप. अब वो सवाल उठा रहे हैं सदन के बाहर मीडिया के सामने. वो कह रहे हैं कि मैं किताब की कुछ पन्ने पढ़ना चाहता हूं, मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है. और सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म आपको यहाँ पे ये बता दूं, मैं पवन गौड़ और नीरज राजपूत के पास भी वापस जाना चाहूँगी, लेकिन सबसे बड़ी जो इस किताब की क्रिटिसिज्म है, जब ये किताब इस किताब की ड्राफ्ट चली गई थी बोलने नहीं दे रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस leader of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the House what the Army Chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ. आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ. पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं. आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे. हाँ, But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. that's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? ठीक है. राहुल गांधी का बयान आप सुन रहे थे.
उनका यही तर्क है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अब ये बताइए, दो चीज़ें मैं समझना चाहूँगी। एक तो टेक्निकलिटी जो है पार्लियामेंट में, वो क्योंकि एक समय एलोकेट किया गया था डिस्कशन के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, अब क्या होगा क्योंकि सदन की कार्रवाई अब कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो जिनका आज समय था, काफ़ी लोग आज बोलने वाले थे, अब उनका कैसे, क्या उनको कल एडजस्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या होगा? देखा, सबसे पहले मैं जो टेक्निकलिटीज की आप बात कर रही थी, उस नियम को मैं समझा देता हूं जिसकी रूलिंग स्पीकर ने दी थी। वो नियम है 349(1). उसके तहत ये नियम में होता है कि आप किसी भी बुक या न्यूज़पेपर का रेफरेंस तभी आप सदन के अंदर दे सकते हैं जब या तो उस पर संसद की कार्रवाई से रिलेटेड हो या उस दौरान उस विषय पर बहस चल रही हो, आप तभी किसी बुक या न्यूज़पेपर का रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप बिना किसी बहस के मुद्दे के अगर उस पर अलग से अगर आप उसको रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो जो है सदन की गरिमा के विपरीत होता है। ये 349(1) जो रूल है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, ये कहता है, और उसी का जिक्र करके लोकसभा स्पीकर ने ये कहा था कि ये जो है, ये इसकी रूलिंग दी थी 349(1) को लेकर कि आप बिना, क्योंकि वो बुक जो है जिस जनरल नरवाने की बुक का वो रेफरेंस कोट करना चाहते हैं, वो बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो आप उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे कि ये बुक पब्लिश नहीं हुई है। उसके अलावा चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी डोकलाम और ये चीन जो LAC का जो पूरा मुद्दा है उसका कहीं जिक्र नहीं था, तो आप बिना किसी रेफरेंस दिया जा रहा था, स्पीकर के द्वारा यही तर्क दिया जा रहा था कि अनरिलेटेड टॉपिक के ऊपर आप क्यों आज बात करना चाहते हैं। नीरज और पवन दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।